Thank you. Thank you. Question hour, Mr. Raja. No, I know the watch. Thank you. Question 361, Dr. Subbarama Reddy. Questioner absent, let the answer be given. सभापति जी लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। Mr. Apollo, please. नहीं, ये कॉलिंग अटेंशन का वक्त नहीं है। बैठ जाइए भाई, प्लीज प्लीज उनको प्रश्न पूछने दीजिए। देखिए, यू कैंट रेज दैट सब्जेक्ट हियर, प्लीज मिस्टर अपोलो। भाई उनके ये वक्त नहीं है, आप बाद में मिल लीजिए, अभी नहीं हो सकता है। नहीं, प्लीज डोंट, प्लीज लेट योर कॉलीग आस्क हिज क्वेश्चन। Please, we'll look into that after this. Not during question hour. No, please sit down. Please. Please. Please, not during question hour. But this is question hour. I can't help it. Bhai, बैठ जाइए, please. Please. After the question hour ends, please see the Secretary General. Lunch hour. Respected Chairman. नहीं, please. भाई बैठ जाइए, please. नहीं, please. बैठ जाइए. Mr. Apollo, please ask your question. No, I'm afraid. Look, please. May I request the honorable members to sit down? After the question hour is over, please see the chairman in his chamber. Yeah. Thank you. He said Please, it. over. He said it. Okay. He said it. Okay. Yes. Mr. Apollo. Respected Chairman, the inception and the growth of United Nations is having direct relevance with the growth of India as the Republic. And keeping the capacities of India at the diplomatic front and economic level and at the political level of the global scenario, the Question. group of 4 countries are looking at the inclusion of India into the United Nations Security Council. But certain nations, in particular our neighboring nation, is not cooperative to Please, attain what the is your process. question? I am coming to that question, sir. No, please come to the question. And keeping this background in view, whether our diplomatic role to promote the reforms in United Nations Security Council are going to yield anything, and are Thank we you. going to get the permanent membership Thank in you. United Nations Security Thank you. Council? Let the Thank you, sir. honorable minister. सभापति जी, जो भूमिका अपोलो जी ने बांधी वो बिल्कुल सच्ची है, सही है। विश्व में भारत का बढ़ता प्रभाव, अच्छी उन्नत होती हुई अर्थव्यवस्था, इन सबके कारण से भारत वो सारी चीज़ें, सारे क्रेडेंशियल्स पूरे करता है जिसके कारण से सुरक्षा परिषद में उसको परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बात को, जैसे उन्होंने कहा कि P5 के भी 4 देशों ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, रशिया ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने पूर्ण समर्थन दिया है और अपनी जॉइंट स्टेटमेंट्स में भी दिया है। जिस नेबरिंग कंट्री की वो बात कर रहे हैं वो चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5वां सदस्य वो है। उन्होंने भी पब्लिकली अपोज नहीं किया है। और जहाँ तक भारत के अपने द्वारा किए जाने का सवाल है, हम लोग वहाँ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक L69 है, G4 है, उन सबके माध्यम से और पूरे कूटनीतिक प्रयासों से वहाँ की केवल अपनी सदस्यता ही नहीं चाहते बल्कि सुधार भी हो, सुरक्षा परिषद में विस्तार भी हो, इसके लिए पूरी तरह लगे हुए हैं। Thank you, Shri Ganeshan. Mr. Chairman, sir, thank you. Knowing fully well that my question is not directly connected to the previous question, but since it comes under external affairs, and the subject is also a hot matter. No. You have to, supplementary question has to relate to the primary question and the answer given. This is If you regarding don't the- have something, then please allow somebody else to No, answer. of course, the point is that the fishermen have been released. I want to. No, I'm sorry. Simultaneously, in other side, fishermen released. What is the permanent solution? These are the words I wanted to ask. The question is different, yeah. Shri,
कह दूं, अभी तो जैसा आपने कहा मैं जवाब इसका नहीं दूंगी। श्रीलंकन इशू के ऊपर और फिशरमैन टोटल के इशू पर एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिया था, उसका क्लैरिफिकेशन अभी रुका हुआ है। जिस दिन क्लैरिफिकेशन होगा गणेशन जी ये सवाल थैंक यू। पूछना, मैं श्री जवाब तुलसी, Security Council and whether India will have the veto power or not. सभापति जी, जहां तक कॉन्फिडेंट होने का सवाल है, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बार नहीं तो अगली बार, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा। जहां तक वीटो पावर्स का सवाल है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को भारत की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं। नंबर 1 पर भारत सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहता है और सुधार चाहता है। दूसरा, हम स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता का विस्तार चाहते हैं। और तीसरा, जो आपके सवाल का जवाब देगा, हम किसी तरह का भेदभाव नए परमानेंट मेंबर्स और पुराने परमानेंट मेंबर्स में नहीं चाहते। 2 श्रेणियां नहीं चाहते कि एक फर्स्ट क्लास के मेंबर्स हों और एक सेकंड क्लास के मेंबर्स हों। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही ऑब्लिगेशंस और वही प्रोरोगेटिव्स, तीनों शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, नए सदस्यों के लिए वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही ऑब्लिगेशंस, वही प्रोरोगेटिव्स चाहता है जो पुराने सदस्यों के लिए। थैंक यू। क्वेश्चन 362, सर, लेट द आंसर बी गिवन। उत्तर सभा महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखिए। सर, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 21 ऐसे व्यवसाय और उद्योग है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, औद्योगिक प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि उद्योगों की आवश्यकता का आंकलन करके और उनकी सिफारिशों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण कोर्स में किसी प्रकार का बदलाव वगैरह किया जाए। जो माननीय मंत्री जी ने सवाल किया है ये बहुत ही प्रासंगिक है अध्यक्ष महोदय, और इसी क्रम में जो हम लोगों ने तय किया है कि अभी ITIs में जो टोटल ट्रेड्स हैं उसमें हम लोगों ने 16 ऐसे ट्रेड्स को नोटिफाई किया है जिसे जो सामान्य रूप से हम लोग डुअल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जो जर्मन मॉडल की करते हैं, इसको पिछले साल से हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया है। और 16 कोर्सेज ऐसे हैं जो डुअल बेसिस पर हम ITIs ने MOU साइन किया है इंडस्ट्री के साथ। और अब जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अभी तक जो सामान्य रूप से हम लोग लेकर चलते थे उसमें लगभग 3300 घंटे का पढ़ाई होता था, जिसमें 2200 घंटे हम लोग उसमें प्रैक्टिकल कराते थे। अब हम लोगों ने तय किया है कि 1800 घंटे तक अगर किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके कोई ITI प्रशिक्षण देना चाहता है तो वो कर सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है भारतवर्ष में। राजस्थान में भी JP ITI है जिसने ये प्रारंभ किया है। ये पहली बार देश में प्रयास किया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के साथ कई सारे ITIs ने अब MOU साइन करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग मान्यता दे रहे हैं। और ये जॉइंट सर्टिफिकेशन भी NCVT और संस्था के साथ होगा, ताकि उस बच्चे की जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में की जा रही है उससे उसको रोजगार लेने में सहूलियत हो सके, वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। इस जो आपने प्रश्न किया है इसकी शुरुआत भारत की सरकार ने कर दी है। दूसरा प्रश्न। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है, ये बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में और बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके रोजगार दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चूंकि बदलाव जबरदस्त चल रहा है, परिवर्तन का दौर है, लगातार और हर व्यवस्थाओं में नए नए आविष्कार होकर और तकनीकी ज्ञान का विस्तार हो रहा है, और पुराने जो कर्मचारी है उनके साथ में बड़ी भारी दिक्कत आती है। नए तरीके से काम करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना सोची है कि जो पुराने कर्मचारी है उनको भी किसी प्रकार का परिवर्तित और अपग्रेड करके वो कोर्स पूरा कराया जाए ताकि वो भी अपनी आजीविका और ढंग से निर्वहन कर सकें? थैंक यू।
जो संस्थाओं में काम करते हैं और जो रोजगार करते होते हैं उनके प्रशिक्षण के हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होगा। हमारा जो सीमित जो मैंडेट है वो बच्चों को आईटीआईज में, शॉर्ट टर्म स्किलिंग में, और अब तो पॉलिटेक्निक भी इसी मंत्रालय के अधीनस्थ कर दिया गया है, वहां तक सीमित है। जहां तक कंपनियों में काम करने वाले मॉडर्नाइजेशन के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि कंपनियां स्वयं इस काम को करती हैं और उनको अपग्रेड करने का प्रयास स्वयं ये कंपनियां सामान्य रूप से अगर अपने आप को कंपटीशन में रखना है तो करती हैं। ठीक, श्री टी.के. रंगराजन। We have started some 3,342 new training institutes. Sir, my question is whether we have enough teachers in these institutes, whether workshop facility is available there. If it's not there, what is the government is going to do on that? Sir, as far as ITIs are concerned across the country, we have about 13,000 ITIs across the country, and the number of them in the private sector would be around 10,500, the rest is in the government. Well, this is an issue because we are faced with a challenge of trained instructors. That is the biggest shortage today, which both we are facing in the short-term skilling and even in the institutional skilling which was happening in the ITIs. We have been trying to improve, and several ATIs and training institutes across the countries have been trying to raise the number of people who have to be trained as instructors. I will have to fish out the numbers as they exist today, but it's a fact that as far as ITI and other skill training is concerned, there is a shortage of instructors, both in the short term and and institutional long term training. But in times to come, we are trying to assess how much is it, and it is growing exponentially. So we have to keep, and through the sector skill councils which are there in the domain of National Skill Development Corporation, we are authorizing several sector skill councils to undertake the program for training of trainers, which is of course a challenge today, sir. Thank you. Shri Digvijay Singh. Please, let the next. Sir? Have any workshop in all these institutions? Yes. To have a training, practical training. Sir, When yes. there is no teacher, how can they give the training? Sir, it is never so that there is 100% shortage of teachers. When we mandate setting up of an institute, we also mandate that there is number of teachers in the classroom and the ratio of students to the teachers. And of course, what he's talked about the labs, there can't be an ITI or a training institute without a lab. That is mandatory as per the norms of that institute. Thank you. So there's no Shri question Digvijay of Singh. labs not being there. Thank you. माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश में लगभग 126 ट्रेड हैं और 21 आपने बाद में बढ़ाए हैं, जबकि चाइना में लगभग 3000 से ज्यादा डिफरेंट ट्रेड हैं जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें लगभग 21 लाख लोगों को हर साल इनटेक है। मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा का एक माध्यम है जिसमें कि ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि आखिर ट्रेनिंग लेने के बाद इन ट्रेंड टेक्नीशियंस का हश्र क्या होता है? क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग ट्रेन किए जाते हैं उनका ट्रैकिंग का सिस्टम क्या केंद्र सरकार के पास है, जिसकी वजह से जिसके माध्यम से वे ट्रेंड टेक्नीशियंस का हैंड होल्डिंग कर सकें और उनको रोजगार दिलाने का प्रयास कर सकें, चाहे अपने प्रयासों से या अप्रेंटिस एक्ट का आपने अमेंडमेंट किया उसके माध्यम से। तो क्या टेक्नीशियंस को जो ट्रेन किए गए हैं उनका ट्रैकिंग सिस्टम का प्रावधान करेंगे? महोदय, जो अप्रेंटिस के बारे में आप माननीय सदस्य ने कहा है, ये बात सच है कि दुनिया भर में अगर सचमुच कहीं ट्रेनिंग होता है तो क्लासरूम के बाद उद्योग में होता है, जहां फैक्ट्री पर होता है, शॉप फ्लोर में होता है। और इसीलिए इस पर भारत की सरकार ने NAPS एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और योजना तैयार की है, जिसके तहत देश की सरकार ने बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपया किया है। और इसके तहत जो अमेंडेड है उसमें अब हम लोग प्रत्येक इंडस्ट्री जो ऐसे बच्चों को अपने यहाँ अप्रेंटिस रखता है उसको बेसिक ट्रेनिंग का भी कॉस्ट हम दे रहे हैं, और साथ साथ इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए जितने बच्चे वो अपने यहाँ ट्रेन करते हैं उनके ऊपर मंथली एक स्टाइपेंड भी हम लोगों ने तय किया है। और अभी तक इस योजना के तहत बहुत सारे भारत सरकार, हमारे यहाँ अप्रेंटिसों की संख्या लगभग 2 लाख है,
2 लाख थी और इस योजना के लागू होने के बाद लगभग 4.5 लाख की संख्या तक हम पहुंच गए हैं। इस योजना में वृद्धि हो रही है और जो माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रैकिंग का सिस्टम, महोदय अभी जो ITIs जो सिस्टम में से निकल करके लोग जो नौजवान जा रहे हैं उनके लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक अपने मंत्रालय के तहत एक सबसे बड़ा एक ट्रैकिंग सिस्टम LMIS का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयर से लेके जॉब एग्रीगेटर से लेकर के इंस्टीट्यूशन से लेकर के शॉर्ट टर्म स्किलिंग सेक्टर में सभी लोगों को हम और वर्ल्ड बैंक के तहत एक योजना अभी स्वीकृत हुआ है, उसके तहत भारत का सबसे बड़ा जॉब एग्रीगेटर और ट्रेनिंग प्रशिक्षण का एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगले 3 से 4 माह में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। श्री रेवती रमन सिंह। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग देते हैं वोकेशनल, उसके बाद कितने बच्चे फैक्ट्रियों में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो नहीं अब्जॉर्ब हो पाते हैं, क्या उनको कोई फाइनेंशियल मदद करते हैं कि वो अपना कोई छोटा मोटा उद्योग लगा के अपनी जीविका चला सकते हैं? माननीय सदस्य का जो सवाल है कि हम लोगों ने देश में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, ये ITI से अलग सवाल है, शॉर्ट टर्म स्किलिंग के बारे में, और हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि जो भी शॉर्ट टर्म स्किलिंग के लिए जो NSQF अलाइंड कोर्सेज है जो छोटे संस्थाओं के माध्यम से होता है, उसमें अगर भारत की सरकार उनको ग्रांट बेस्ड अगर ट्रेनिंग दे रही है तो ये अब मानक स्थापित कर दिया गया है कि 100 में से 70 बच्चों को उन्हें प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट का मानक महोदय ये होगा कि या तो वो बच्चे को वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब इंडस्ट्री के अलावा अब हम लोगों ने सर्विसेज सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर दिया है, जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट, तो या तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट में हो या सेकंड हो कि अगर वो बच्चा अपने आप को किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, यानी अगर कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करके अगर बैंक से 40,000 रुपए का वो लड़की या बेटी किट खरीद करके अपने गांव में शुरू करती है तो उसे भी हम लोग प्लेसमेंट मानते हैं। या फिर इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शॉर्ट टर्म स्किलिंग में ये बच्चे अगर किसी उद्योग में जाके अप्रेंटिस होते हैं तो उसकी भी मान्यता दी गई है। और ये तीनों विश्लेषण में अगर ये तीनों मानकों में से एक भी पूरा करता है तो उसे हम प्लेस्ड मानते हैं। और इसकी योजना आज इसकी पूरी योजना कार्यान्वित हो रही है। और जिन बच्चों के बारे में आप कह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं रोजगार ले पाते हैं, महोदय ये संभव नहीं है कि वैसे बच्चे जो रोजगार ना प्राप्त कर सके उनको किसी प्रकार का वित्तीय सहायता दिया जाए, इसका अभी कोई प्रावधान नहीं है। Question 363. Question, let the, thank you. सवाल पूछिए। I thank the Honorable Minister for replying it at length and in depth. The government needs to be commended on the successful implementation of educational initiatives like the Kendriya Vidyalaya and the Navodaya Vidyalaya. The phenomenal success of the initiative can be well judged by the popularity of the institutions and the higher demand of the institutions. Through you, sir, I would like to ask the Minister that he says the higher secondary education can be only improved if there is a quality of education at elementary level, so Sarva Shikshan Abhiyan has been implemented. Then why there is still a huge dropout of students in rural areas? How will the government tackle this? सर, अपने स्कूल सिस्टम में 23 करोड़ छात्र हैं और सबको अब दरकार है, गरीब से गरीब अभिभावक भी चाहता है कि मेरे बेटे को बेटी को अच्छी शिक्षा मिले और इसलिए हमारा सारा प्रयास सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसको लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे केंद्रीय विद्यालय हमारे सदस्य भी मुझे मिलते हैं उसी लिए क्योंकि गरीब की इच्छा है कि अच्छे स्कूल में जाए। तो केंद्रीय विद्यालय में पिछले 3 साल में 47 नए स्कूल ऑपरेशनलाइज हुए हैं और 50 नए सैंक्शन हुए हैं। तो 1100 पहले थे, तो इस 3 साल में लगभग 100 की बढ़ोतरी हम कर रहे हैं। दूसरा, जहां 1-2 जगह कोई समस्या आई थी कि केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट वाला था और वो इस साल से एडमिशन बंद होगी क्या, तो वो भी मैंने कहा है कि हरिद्वार हो, देहरादून हो, अमेठी हो, जहां भी ये केंद्रीय विद्यालय की समस्या आ रही थी वहां हम
ने ये प्रवेश जारी रखे हैं, किसी का बंद नहीं किया है। तीसरा, नवोदय विद्यालय मंत्रिमंडल ने 62 नए नवोदय विद्यालय मंजूर किए हैं और ये हमारे भारत की प्रतिभा का बहुत सम्मान है। ग्रामीण छात्रों को 25 लाख छात्र 5वीं के बाद परीक्षा देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, और 25 लाख में से 40,000 बच्चों को प्रवेश मिलता है। अब ये 62 नए आने से और प्रवेश मिलेंगे और ये दरकार है। लेकिन सभी स्कूल अच्छे होने चाहिए, इसलिए एक उच्चतर विकास योजना ये भी लागू है और सर्व शिक्षा में 3,60,000 एलिमेंट्री स्कूल्स ओपन किए गए सर्व शिक्षा के बाद। 2,91,000 स्कूल बिल्डिंग्स तैयार हुए, 18 लाख लगभग एडिशनल क्लासरूम्स हुए हैं और 2,31,000 स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नए से लागू की गई है और 10 लाख लगभग टॉयलेट्स भी हुए हैं। तो 15 लाख टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट हुई है। यानी सर्व शिक्षा अभियान में जब टीचर्स होते हैं और उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है, वो भी बहुत पॉपुलर है, खासकर जहां फीमेल लिटरेसी कम है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड इलाके हैं, वहां आज केजीबीवी के लगभग 3600 स्कूल्स चल रहे हैं और हॉस्टल भी है। ये बहुत वरदान साबित हुआ है, ये भी पॉपुलर स्कीम है। तीनों स्कीम का अच्छा विस्तार हो और सर्व शिक्षा जिला परिषद का भी ये हो, इसलिए हमने लर्निंग आउटकम्स लाए हैं। हम टीचर एजुकेशन में कंप्लीट रिफॉर्म कर रहे हैं। हमने 10वीं की बोर्ड एग्जाम लागू की है और चौथा और महत्वपूर्ण कि पूरे 5वीं और 8वीं में डिटेन करने की परमिशन अनेक राज्य मांग रहे हैं, उसके लिए भी बिल जल्दी आएगा। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। So I don't have a second supplementary question, but just want to request. If you don't have it, then please It's just allow a- others to. No, it's just a request to the Honorable Minister that Kolhapur is my nodal district and my forefather Shahu Chhatrapati Maharaj, whose statue is in the parliament. No, that's not the issue here. Yes, Please sir. ask your Yes, question. sir, just give me a second, sir. He started free education in the erstwhile Kolhapur state. And also 23% of. No, you are not Sir, making sir, a statement here, please. I'll complete in a second, sir. It's a very important, 23% of the fund which the government, the Kolhapur state fund was given for education. But there is no Kendriya Vidyalaya in Kolhapur. So I just request the government if he can give it to us. करने के लिए एक प्रक्रिया है और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार से अगर आपके माध्यम से यानी प्रपोजल आता है तो उसका, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज जी ने बहुत ही शिक्षा में उस समय काम किया और समाज के सभी तबकों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए और इसलिए वहां हमारी जरूर प्रायोरिटी रहेगी। श्री हुसैन दलवाई। बहुत अच्छा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदया विद्यालय में जो शिक्षा पाई जाती है वो जिला परिषद और म्युनिसिपल स्कूल्स में पाई नहीं जाती। वहाँ क्वालिटी एजुकेशन कुछ नहीं है। एक 0 से 6 साल तक, 0 से 6 साल तक बच्चों के लिए आपकी कोई स्कीम नहीं, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए कोई स्कीम नहीं, उसके बारे में कुछ करेंगे क्या? और प्रथम ने जो सर्वे किया है उसमें जो बातें बताई है उसमें कुछ आप संशोधन करेंगे क्या? थैंक यू। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि अनेक संस्था और खुद सरकार भी जब सर्वे करती है तो छठी का बच्चा दूसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता है। अगर ये वास्तविकता सामने आती है और गणित 7वीं का छात्र अगर तीसरी का गणित नहीं कर पाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। राइट टू एजुकेशन पास होने के बाद दुर्भाग्य से परीक्षाएं तो खत्म हो गई, यानी परीक्षा माने प्रमोट करना ही है। पहली में आए तो बच्चों को लगा कि अब तो जाना है। अनेक जगह मिड डे मील स्कूल्स बन गए, आना खाना जाना, और इसलिए इसको सुधारना हमने पहला चैलेंज समझा। और इसके लिए अब पहली में क्या हो, कितना आना चाहिए गणित का और भाषा का, दूसरी में कितना आना चाहिए, तीसरी में कितना आना चाहिए, ऐसे हर साल के लर्निंग आउटकम्स ये तैयार हो गए, नोटिफाई हो गए। उसके लिए टीचर्स को हैंडबुक दिया गया है और इस साल अभिभावकों को भी हमने सभी राज्य सरकार को कहा है कि जिसका बच्चा चौथी में है 5वीं में है उसको दे दो कि आपके बच्चे को क्या आना चाहिए, तो उनको भी पता चलेगा। स्कूल के दीवारों पर भी हम लर्निंग आउटकम्स लगाएंगे और ये सब करने से एक अकाउंटेबिलिटी बनती है।
शिक्षण संस्थानों की, स्कूलों की, टीचर्स की, अभिभावकों की, छात्रों की। थैंक यू। और ये करके हम ये इसमें सुधार लाएंगे। श्रीमती झरना दास वैद्य। सर, मैं माननीय मंत्री जी से आपका माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय वो पूरा देश में है, त्रिपुरा में भी है, तो फिनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर लिखा है बहुत स्तरीय। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एमपीलेट से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एमपीलेट से 25 लाख से ज़्यादा एक इंस्टॉलमेंट दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग कर भी नहीं सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 2017-18 में कोई रखा है फिनेंशियल? थैंक यू। केंद्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार करती है और इसलिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, उसकी मरम्मत ठीक तरह से हो, ये हम उसके लिए जो प्रोविजन करनी है की है। लेकिन मैंने जैसे इस बार आपको पत्र, एक चिट्ठी लिखी सभी एमपीज को, उसमें ये लिखा है कि कुछ छोटे छोटे काम होते हैं और वहाँ अगर आप केंद्रीय विद्यालय में वैसे भी ध्यान दो, कभी वहाँ जाओ, छात्रों से बात करो, छात्रों से बात करना, शिक्षकों से बात करना, ये जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे स्कूल्स को, तब तक वो स्कूल का बाकी भी जिला परिषद स्कूल में भी आपको जाना चाहिए। और हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी हमारी है। जो एमपी लैड में जो पैसा देंगे उसका बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैटिया। माननीय सभापति जी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान और पढ़े भारत बड़े भारत, इस प्रकार की सरकार की योजना काम कर रही है, किंतु इनको कारगर करने के लिए उपाय हमको करना होगा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ऐसी दो हमारी प्रतिष्ठित संस्थाएं जो काम कर रही है, इसका विस्तार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। गांव की शिक्षा और गरीब की शिक्षा में और अमीर की और समृद्ध की शिक्षा में, शहर की शिक्षा में बहुत फर्क हो गया है। और इसलिए यदि इस सारी बात को करने के लिए, चूंकि ये टुकड़े टुकड़े में नहीं हो सकता, और राइट टू एजुकेशन का मतलब एजुकेशन, राइट एजुकेशन होना चाहिए, सही प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। इसके लिए जो आपने कार्यक्रम बनाए हैं उसको लागू करने के लिए आप किस प्रकार से राज्यों को सहायता करेंगे और उसके लिए क्या क्या उपाय करने वाले? थैंक यू। ऐसा है, राज्यों को जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 60-40 पैटर्न में जो देना है वो हम देते ही है। इस बार इसमें और एक एलिमेंट ऐड किया है कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो राज्य ज्यादा प्रयास करेंगे उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज वी वांट क्वालिटी टू बी इंप्रूव। एक ही बात कहना चाहूंगा कि माध्यमिक स्तर पे भी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हमने एक शुरू किया, जिसमें 2 बिंदु है। जो वहां के बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज है, अच्छे कॉलेजेस है, IITs है, उनको कहा है कि आप भी आसपास के नेबरहुड के स्कूल्स को गाइड करिए, उनके बच्चों को अपने संस्थान में आने दीजिए, उनका भी सपना जगाइए और उनके टीचर के साथ भी संवाद करिए। साइंस एजुकेशन, मैथमेटिकल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, रेमेडियल टीचिंग और एक्सपेरिमेंटल किट्स, इसे सब करके ये योजना चल रही है, इसका भी अच्छा परिणाम। क्वेश्चन 364। क्वेश्चन नंबर 364। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूं, मानवर JNU का विश्व में एक अपना अलग स्थान, लेकिन धरना प्रदर्शनों से जो अध्ययन में प्रभाव पड़ता है और लगातार वहाँ पर जो घटनाएं मिल रही हैं कि अभी देश में जो सर्वे हुआ 1970 से अब तक 12 से अधिक दलित छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई मानवर। अभी एक छात्र जो है मुथु कृष्णन ने आत्महत्या की मानवर। तो ये जिस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है छात्रों की समस्याओं को लेकर के, या लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा होती है, जो शोध छात्र हैं, जो बच्चे मेधावी छात्र हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो विश्वविद्यालय, तो मानवर इसमें हम मंत्री जानना चाहते हैं, उन समस्याओं को लेकर के छात्र धरने में बैठते हैं, क्योंकि जो मेधावी छात्र है उसके कम नंबर मिलते हैं, जिनके प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो लड़का पढ़ता भी नहीं है सही, उसके नंबर अच्छे आते हैं, इसलिए वहाँ टकराव होता है और छात्रों की समस्याओं को लेकर। तो मैं मंत्री जानना चाहता हूँ कि ये जो JNU के छात्र मुथु कृष्णन द्वारा आत्महत्या के क्या कारण थे, उसने आत्महत्या क्यों की, उसके क्या कारण थे? थैंक यू।
उसके बारे में पुलिस ने जांच भी की, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कैंपस में एक भी आत्महत्या होना यह अच्छा नहीं है, और न होने के लिए हमने प्रोएक्टिवली कुछ काम किया है। ये किया है कि जब पहले हैदराबाद में यह ऐसा वाकया हुआ तो उसके बाद एक कमीशन बैठा, उन्होंने 5-6 उपाय सुझाव दिए थे, हमने उसमें और 5-6 उपाय जोड़े। तो एक अच्छी रोबस्ट इंडक्शन कोर्स हो, तो गांव से आते हैं, अलग अलग जगह से छात्र आते हैं, उनका इंडक्शन अच्छा हो, उसके बाद उसको रेमेडियल कोर्सेज की व्यवस्था हो, उसके साथ उसको काउंसलिंग की व्यवस्था हो, वो अकेला न रहे इसके लिए व्यवस्था हो, उसके लोको पेरेंटिंग की व्यवस्था हो, ये किया। लेकिन दुर्भाग्य से आपने जो पूछा मैंने उत्तर में दिया है, और आप सब पढ़ोगे कि जेएनयू में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मैंने चार्ज दिया है जो 3 साल में हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी धरनाज एंड प्रदर्शन डिटेल्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर ऑन इश्यूज नॉट पर्टेनिंग टू जेएनयू एंड पर्टेनिंग टू जेएनयू, ऐसे 2 चार्ज दिए हैं, जरूर देखना चाहिए। हैरेसमेंट एलिगेशन इन वेस्ट बंगाल, condolence then against demolition of Babri Masjid, then judgment of Nirbhaya, then operation of opposing US President Obama's India visit वगैरह वगैरह, ऐसा चलता है। मैं भी छात्र आंदोलन में था, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है, ये भी आप देखेंगे। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन। माननीय सभापति महोदय, जो हमने प्रश्न पूछा था उसका मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या सरकार जेएनयू की स्वच्छता समाप्त करने संबंधी या कुलपति के अधिकार कम करने के लिए कोई विचार कर रही है क्या? किसी भी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म नहीं होगी, बल्कि हम प्रोत्साहन दे रहे कि कॉलेजेस भी ऑटोनोमस बने, अपना करिकुलम फ्रेम करे, अपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, अच्छे दुनिया में उनके नाम से छात्र हो, जिनको गौरव भी हो और जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो ऑटोनॉमी ज्यादा मिलने के प्रयास हमारे हैं, कम करने के बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। श्री येचुरी जी, इस यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते मंत्री महोदय जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जो भी आपने यहाँ पे लिखित में दिया कि किन किन सवालों पे आंदोलन होते हैं, क्या मतलब प्रोटेस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, सही है, आप भी छात्र आंदोलन में थे और कई बार, निश्चित रूप से हम करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ओबामा आए, हमारा कोई उसके मतलब अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ कुछ बात है तो उठेगा, और इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने वो लिस्ट दी है जो मांगी है, जो मांगी वो लिस्ट दी है। बस आपने लिस्ट दी, और यहाँ पे जो आपने अपने उत्तर में ये जो 6-7 स्लोगन जो लगवाए, उसके अंदर कोर्ट के अंदर गया मसला, वहां पर वो टेप्स कहे गए कि डॉक्टर्ड है, तो उसके अंदर अब ये इल्जाम आप भी लगा रहे हो कि छात्रों ने ये उठाया, जबकि कोर्ट कचहरी कहती है कि इसके ऊपर जो है वो सब डॉक्टर्ड है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आपने पॉइंट नंबर 3 रोमन छोटे पॉइंट नंबर 3 में कि ये दिया कि यूजीसी नोटिफिकेशन ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्रीज रेगुलेशन 2016. The next paragraph says, sir, that Jawaharlal Nehru University correctly is an autonomous institution with its own act of the parliament, etc. Now the fact remains that the UGC notification, which is being implemented on the university, has drastically reduced the intake of students for programs of higher education. Now this affects what the original question was related to. This affects to a large extent people coming from the marginalized and the downtrodden sections of society, for which JNU had made special provisions to attract them, not only in terms of social backwardness, but in terms of regional backwardness. You had categories where the first generation learner was given a certain degree of weightage. Now all that will vanish if these regulations are imposed. Now, is that not an encouragement of the autonomy? How are you today? How is the UGC today saying that this university cannot take more than so many students? Thank you. And सर, एक तो यूजीसी ने ये नहीं कहा कि कितने स्टूडेंट्स को लो। यूजीसी नोटिफिकेशन ऑफ 1 मिनट मुझे उत्तर देने दो, 2016 has said that the professor can guide 8 students, associate professor can guide 6 students, and assistant professor can guide 4 students. World over, this is exactly half the number which, and everybody, Rajesh Gowda is here, they all are there. So it is very less number, which it is because it is personal.
लेकिन जेएनयू में क्या हुआ है, एक मैं नाम नहीं पढ़ता प्राध्यापकों के, एक प्राध्यापक रिटायर हुआ है और 44 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। अब पीएचडी कोई क्लासरूम थोड़ी होती है, इट इज 1-to-1 बिकॉज हर एक का सब्जेक्ट अलग है, उसको पढ़ाना है। दूसरे एक प्राध्यापक है 28 छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मैं बाद में इतना ही कहूंगा कि 8 की कैप है और ये मैंने नहीं लगाई, हमारी सरकार ने नहीं लगाई, 2009 में यूपीए सरकार ने लगाई जब आप समर्थन कर रहे थे, तो 2009 में लगाया ये कैप, हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया। और दूसरा अबाउ 10 से ज्यादा करने वाले प्राध्यापकों की संख्या 104 है सर। अबाउ 20 और 30 के दरमियान करने वाले 19 टीचर्स है, अबाउ 30 गाइड करने वाले प्राध्यापक 4 है और 40 से ऊपर 1 है। अगर ऐसा होगा तो सर पीएचडी नहीं होती है, जो शिक्षाविद है वो समझ सकते हैं। और इसलिए इस साल कम क्यों संख्या हुई ये मैं बताता हूं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे है अनेक सेंटर में, एक सेंटर में या डिपार्टमेंट समझो जिसमें 2 प्राध्यापक है, 4 एसोसिएट प्रोफेसर है, 5 असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनको मिलके कितने छात्रों का पीएचडी करने का ये यूनिट है, ये एक संख्या तय होती है। ये हर साल की पद्धति है, ये हमने कोई नया नहीं लाया। अब इसमें कुल मिला के विभिन्न सेंटर्स ने 425, उनका निगेटिव है क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा छात्र पहले लिए पिछले 8-10 साल में, तो इसके कारण उनकी स्ट्रेंथ कम हुई। जो अच्छा, फिर यह मसला कोर्ट में गया और कोर्ट ने साफ कहा, अच्छा 2 फैक्ट है, कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के रेगुलेशन सभी विश्वविद्यालयों को लागू होते हैं और 100% उसका फॉलो करना है। व्हाट हैपेंड, all 743 universities in the countries are implementing those regulations without any complaint. It is only one university which is not following the rules. That is why court has. Please, now let me go on to the second question. No, please, no. He mentioned that I supported a government which broke these rules. Okay, doesn't matter. Doesn't matter. Clarify. Doesn't matter. Government did not implement. Please, You are implementing. Please. And secondly, Shri Tiriju Siva, PS please sit down. No, Yachuri ji. Yachuri ji, please. No, Mr. Raja, no. Sorry. Thank you, Chairman, sir. Please sit down. आप बैठ जाए. Please. Sir, yes, Please, Jawaharlal back. Nehru University is an autonomous institution. Sir, power along with it automatically brings responsibility. In the recent incident when a student, Mr. Muthukrishnan, committed suicide, sir, after 72 hours of that incident, when we visited the hospital, we came to know that neither the Vice Chancellor, nor the Registrar, nor the Dean of the Welfare of the Students have contacted the parent of the student and have informed about the incident. Not even the local guardian who was in charge of the student. So the reluctance on the part of the authorities there are the main cause of many incidents that happened there. And I would like to know from the Honorable Minister whether he would monitor and instruct that such discriminations meted out to the students, and as well as the responsibility of the Chancellor or Vice Chancellor or the Registrar or the welfare of the students is carried on as they should. Thank you. I will definitely look into it, yes. Shri Rajiv Gowda. University is continuously ranked as one of the best universities in the country, and the strict numbers for PhD guidance, master's guidance, etc. should be relaxed in its case, because the people there are outstanding enough to be able to guide many more students than in standard universities. So, I have another question. It is a bastion of free speech, of political engagement, and this notion of taking up issues which are extraneous to the institution is really unnecessarily listed in that manner. Every institution should engage with any issue that matters in the world and that affects the students and their conscience. That is matters. So, but my questions to the minister are, there was, which Mr. Yechuri pointed out, doctored videos that got the JNU student president Kanhaiya Kumar arrested, beaten up in jail and in the courtroom, and what progress has been made in identifying and arresting the people who doctored those videos? And secondly, what progress has been made on lie detector tests for the ABVP students who fought with Najib Ahmed, who has since gone missing? Why has there not been sufficient progress on that front? Thank you.
These matters are in court, and so I am not privy to what is actually happening in court. We are waiting for the court verdict. But let me tell you one thing. JNU made famous for something else, and it is actually a very best university. And what they have achieved, let me put on record, malaria, anti-malaria vaccine they have come out with. But that is not reported. DNA replication for better diagnosis of diseases, and that is been patented in US also. So that is done by JNU. Cheap diagnostic tool for TB and vaccine for anthrax, biomass जो होता है और बायोमास बर्निंग में भी उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है. So they are being ranked best, they are being adjudged good university, best university because of this work which is never gets publicity. And but I was surprised. 1 minute. Just a 1 minute. 1 minute. 1 minute. One sec. I have not given list of agitation on my volition. It was asked in the question, and I am duty bound to answer. They have asked in 3 years how many agitations have happened. So I must list it, and that is what I have done. I have given a fair answer, and more importantly, I was surprised. Rajesh Gowdaji, who has taught in best of the best universities of the world, is saying that 40 students also one professor can guide. I don't agree. Perhaps he is a professor, he would know. Please, all right, this question is over. This question is over now. Please. You just take account of how many. Please, all right, you make your point. Thank you. This country, maximum IAS, maximum IFS, maximum your IPS. Thank you. Yajuri ji, thank you. Thank you. Question 365. No. Thank you. Question 365. Ji, supplementary, please. Sir, this is indeed a very serious matter, though the reply talks only of a few fake forms which were received, but the minister in the written reply has said that states like Uttar Pradesh, Uttarakhand, both election-going states they were, and 2-3 other states were from where such fake forms were received, wherein people were promising 2 lakh cash incentives to women or children, girl child from 8 to 32 years of age. So the government was compelled to to institute a CBI inquiry. My information is that over 2 lakh forms were received from Uttar Pradesh and Uttarakhand alone. I want to know, when the matter is so serious that you are trying to mislead the people, a CBI inquiry is ordered. Has any time frame been fixed for the CBI inquiry? Is there a preliminary report which the government has received on this? Thank you. The written reply says that FIRs have been filed. I would like to know how many FIRs and against whom all these FIRs have been filed in Uttar Pradesh and Uttarakhand. महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो ये हम मान लें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ही हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस स्कीम के में मुख्यतः एक चुनौतीपूर्वक मना स्थिति और सामाजिक प्रणाली में पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसमें गहरी पैठ बनाना और हमारी बेटियों को बचाने के लिए जो भ्रूण परीक्षण किया जाता है उस पर कठोर कानून को लागू करना और इसके साथ ही इसमें सीधे लाभार्थी का कहीं पैसा देने का कभी प्रावधान था नहीं ना आज है. ये निश्चित बात है कि ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो आपने कहा मुजफ्फरनगर और मेरठ से ये प्रारंभ हुआ जिसकी शिकायतें हमारे यहाँ आना शुरू हुई जिसका फॉर्म भी हमारे पास है और इस तरह से आना शुरू हुई. मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कहीं न कहीं से फर्जीफिकेशन हुआ. जैसे ही ये पता चला
कि इस तरह की हमारे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2 लाख का जो ये इन्होंने तय करा रखा था फीस, फर्जीफिकेशन जो हुआ, उसमें हमारे मंत्रालय ने तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जिला के जिलाधिकारियों को सारी सूचना दी। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ FIR हुई हैं जिसको मैं बता सकती हूं कि जैसे हमारे मंत्रालय को पता चला कि ये ऐसा हुआ है, FIR हुई है, उसकी कॉपी मैं आपको प्रस्तुत करती हूं, मैं अभी दे सकती हूं। दूसरा, जब पूरे देश से पश्चिम बंगाल और बिहार सब तरफ से जब आने लगा तो सीधे सीधे CBI की जांच हमने करा दी है। सुन ले, जवाब सुन लीजिए, 1 मिनट। CBI की जांच की परिधि में सुन लीजिए प्लीज। माननीय सभापति जी, ये जब ये पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा सब जगह हो रहा है, तो इस फर्जीफिकेशन को रोकने के लिए सीधे CBI को सौंप दिया गया और हमको जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम सबको पता चलेगा। ठीक है, you please ask your. Sir, there is no preliminary report, no FIR. I'm so sorry. Sir, the reply also says there is no point in the Honorable Minister repeating it, that to counter this question of fake forms, they've gone into a massive publicity drive through Doordarshan, AIR, newspapers, and all social media. I just want to know from the Honorable Minister that one massive publicity drive is to counter the fake forms. Another massive publicity drive is to propagate this good scheme. I want to know what is the total budget sanctioned for Beti Bachao, Beti Padhao, and how much has been already spent on publicity, adverse or pro? Thank you. माननीय सभापति जी, ये राज्यवार जो है हमारे वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, ये 100 करोड़ का बजट था जो सीधे राज्य से राज्य के द्वारा जिले के जिलाधिकारी इसका नेतृत्व करता है और जन जागरूकता के अभियान में वो लग करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारा मंत्रालय ये स्वास्थ्य विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय सभी से समन्वय करके बेटियां कैसे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवंत रहें, ऐसा अभियान चलाया जाता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 25 करोड़ जो है हमारे इसका 100 करोड़ का 25 करोड़ हमारे केंद्र से ही संचालित, जैसे रेडियो, आकाशवाणी, SMS प्रदर्शनी लगा करके, जन डाक विंग चल रही प्रदर्शनी, बैन आदि से ये 100 इसमें तमाम तरह के प्रचार के साधन हैं जो जन जन में ये जागरूकता लाते हैं और बेटी कैसे बचे और कैसे पढ़े, स्वच्छ रहे। मैं आप जिस का जानना चाहेंगे मैं आंकड़ा दे सकती हूं, वैसे कुल मिलाकर के 122.68 करोड़ का जो है हमारा अभी तक का वास्तविक बजट व्यय हुआ है। मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि इसमें किसी व्यक्ति कोई बेनिफिशियरी नहीं है, ये एक जागरूक कार्यक्रम है जिसमें हम 24 लाख तो राज्यों को देते हैं, 25 करोड़ से पूरा ये समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन और बैन के द्वारा ये पूरे देश में राज्यों के द्वारा जिले में करते हैं। और 65 लाख जो है जिला अधिकारी जो सभी अपने अधिकारियों के साथ रैली निकालना और नुक्कड़ सभाएं करना, कठपुतली, तमाम ऐसे हैं जो मैं आपको प्रस्तुत कर सकती हूं, मैं बताना चाहूंगी। थैंक यू। श्री तुलसी। Thank you, sir. So my question to the Honorable Minister is that in view of the fact that lakhs of these fake forms erupted in the election-bound state of Uttar Pradesh and carried on from one part of the state to the other as the election progressed in several phases, has the government and the CBI examined that whether this had connection with the election offences and whether it has connection with inducement of voters, because these fake forms promise 2 lakh to each of the women or child,
Thank you. There could be an inherent connection with the election offense and disrupting the election. Thank you. माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य की चिंता और हम सभी की ये चिंता है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। और जैसे ही ये संज्ञान में आया तो सबसे पहले कि राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करके एफआईआर दर्ज कराना प्रारंभ किया। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि जब पता चला कि पूरे देश में सभी राज्यों से इस तरह की शिकायतें आना शुरू हुई हैं, तो तत्काल हमारे मंत्रालय ने सीबीआई को सौंप दिया है ये, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमको पता होगा। श्रीमती कहकशां परवीन। मैं अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने जो फर्जीवाड़े और इसको लेकर करके मुख्य सचिव और डीजीपी को हर पत्र लिखा गया है हर राज्य के, तो इसमें कितने राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों का की गई कार्रवाई से आपको अवगत कराया गया और आपने अब तक इस पे और क्या पहल की है? देखिए, ये सही कह रही है हमारी मैडम कहकशां जी। जैसे ही आया कि 1-2 एफआईआर उत्तर प्रदेश में जब पता चला, एफआईआर करा दी गई है, उसके बाद तत्काल ये सूचना आने लगी कि मैं पश्चिम बंगाल से तमाम राज्यों से आने लगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया। चूंकि सीबीआई में ये केस चला गया है, तो जब वो निर्णय आएगा तभी हम आपको बता सकेंगे। श्रीमती जया बच्चन। Sir, through you, I'd like to ask the minister. आपने बताया आपका बजट क्या है। इस बजट में आपने कितने बेटियों को बचाया और कितनी बेटियों को पढ़ाया? माननीय सदस्य जी का निश्चित बात है कि बेटियां बची हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा कि सीधे किसी को पैसा देने का नहीं, लेकिन जन जागरूकता करने का। 1000 बेटियों पर हरियाणा में हमारा सबसे पहले प्रारंभ हुआ। हरियाणा में 1000 बेटों पे 918 बेटियां थी। आज हमने सभी 58 जिले लिए थे। वहां पर जो लिंगानुपात था, हमारी बेटियों की बढ़ोतरी हुई है और हमारी बेटियां पढ़ी हैं और आज की डेट में 950 की संख्या हो गई है। लगातार हम समानता की ओर चल रहे हैं। ये प्रारंभिक विषय है, आगे चल के देखेंगे बेटियां और बेटे के समान। I just want to state. You want statistical information? Yes, I wanted specific information. This is a very, very general political bhashan. It can be made available to you if it is not ready. जी, I hope so. माननीय सभापति जी, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सीधे बेनिफिशियरी नहीं है और 25 से 100 करोड़ प्रति वर्ष हम देते हैं। जो राज्य करते हैं, अगर उसका ठीक से उपयोग कर लेते हैं तो उनका पुनः दिया जाता है अगले वित्तीय वर्ष में, और नहीं तो फिर इसको ऐड करके देते हैं। मैं अभी प्रारंभिक योजना है। मंशा ये है कि बेटियां लगातार जो है कम होती जा रही थी, उनको बेटियां कैसे बराबर आए, ये है। किसी को कोई बेनिफिशियरी नहीं है। मैं माननीय मैडम आपको बताना चाहूंगी कि ये सीधे प्रचार प्रसार का माध्यम है। जैसे मैं आप चाहे तो मैं गिना सकती हूँ। और इस तरह से जनवरी 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हुआ था। हमारी सरकार और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी की ने आगे बढ़कर इनकी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कोई लाभार्थी नहीं, सिर्फ समाज को बदलना, समाज की सोच को बदलना, और ये सोच लगातार बदलती जा रही है। मैं यही बताना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। क्वेश्चन 366। सर, माय क्वेश्चन 366। Yes. A statement is laid on the table of the House. Yes, supplementaries please. सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा प्रश्न करना चाहता हूं कि CRZ का जो एक्ट है, वो मुताबिक जो समुद्री तट से 500 मीटर के एरिया में CRZ सेकंड लगता है। CRZ 500 मीटर में, 200 मीटर में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं। तो जो दरियाई पट्टी पे, जो ये समुद्र तट पे जो अनऑथराइज्ड जो बांधकाम हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या इसका स्टेप्स लिए हैं? और महाराष्ट्र मुंबई में और 1-2 जगह दूसरी जगह जहां समुद्र तट पे ही बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो वहां CRZ का क्या कोई प्रावधान है? नहीं, CRZ वहां लगता नहीं है।
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। थैंक यू। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो रूल्स हैं ये 2011 में बने थे और इनको और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो रूल्स हैं इनको सबको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट्स की होती है। भारत सरकार इसमें जो टेक्निकल इनपुट्स हैं, कानून बनाना, कानून के तहत रूल्स बनाना, उसके लिए साइंटिफिक फीडबैक देना, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना और ये सुनिश्चित करना कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पर्याप्त गाइडेंस दे जिसके तहत जो देश में बने हुए कानून हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि 200 मीटर्स में कुछ नहीं किया जा सकता, 500 मीटर्स में हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक्स हैं और अभी 2011 के भी जो रूल्स हैं उनके बारे में भी जो है सरकार ने एक कमेटी बनाकर उसके बारे में चिंतन हो रहा है कि उसमें भी क्या कोई मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है, उसको भी सारे स्टेक होल्डर्स के सामने उनको रखा गया है और आने वाले समय के अंदर उसके संदर्भ में भी जो आवश्यकता होगी वो किया जाएगा। जो माननीय सदस्य की चिंता है उसके संदर्भ में जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको विशेष रूप से संज्ञान लेना है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कायदा बनाती है CRZ सेकंड का 500 मीटर का जो नॉर्म्स है, तो कोई भी स्टेट उसका उल्लंघन कर सकती है या तो उसको रद्द-बदल कर सकती है या तो उसमें मॉडिफाई कर सकती है, यही मैं जानना चाहता हूँ। जैसा मैंने जो पहला सप्लीमेंट्री था उसके संदर्भ में कहा कि जो अभी तक का अनुभव है और जो लोगों के कंसर्न्स ध्यान में आए हैं उन सबको विचार में रखते हुए ही भारत सरकार ने इस 2011 के जो लेटेस्ट रूल्स हैं उनके संदर्भ में हाई पावर्ड कमेटी बनाकर और सभी जगह से इनपुट्स लेकर सभी संबंधित लोगों से कि हमें इस समस्या का कैसे समाधान करना है उस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्दी जैसे ही ये रिपोर्ट ये सब जगह से स्वीकृति पाकर अभी जनता से भी इसके बारे में जो फिशरमैन हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी से इसके बारे में, पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, कोस्टल एरियाज़ के जो मेंबर्स हैं, सभी से इसके बारे में इनपुट्स लिए जा रहे हैं। थैंक यू। श्री जयराम रमेश। Sir, it's a little unfair that this question has been asked of the Minister for Earth Sciences. It should have actually been asked of the Minister for Environment, Forests and Climate Change. It's a little unfair, but I won't make life difficult for the Minister. This is a simple question. Actually, the answer lies with the person sitting next to him, who is now looking after the Ministry of Environment. Diverted the issue. So my question is very simple. In the answer that the Minister has given, he has talked about hazard line, he has talked about coastal vulnerability, and he's talked about shoreline atlas. My question is very simple, sir. In view of the fact that we now have a hazard line, in view of the fact that we now have a coastal vulnerability index, and in view of the fact that we now have shoreline changes, what action does the central government, forget the state government, what action does the central government propose to take in view of the information that the minister himself has given in the answer? I don't want an answer saying that ये state government की जिम्मेदारी, central government क्या करने वाली है, वो मुझे बताइए। The honourable member has carefully read the reply. He would find it there that in a number of states we have already taken up projects to ensure that all these issues related to coastal erosion, etc., they are all taken care of and we are able to provide a future strategy with a scientific backing. This is already in the answer. If you want, I can read it for you. Will you relocate facilities? That's the question. You see, that is what I am trying to say. There is a detailed study going on. If you read carefully and in detail, you will find that in the answer itself, we have mentioned that in the
The ICZM project also envisages large-scale assessment of the risk associated with shoreline changes and preparation of a framework for development of management solutions to combat these risks. Under the phase 1 of the project, shoreline management plans are prepared for 5 identified coastal stretches in afraid, Gujarat, Odisha and West. Sir, Question hour is over. Thank you, sir. Statement by Minister correcting answer to question. Colonel Rathod. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement correcting the answers to one-start question number 2073 given in Rajya Sabha on 4th August 2016 regarding violations of rules of registration as mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you. House stands adjourned till 2 p.m.